Good morning, students. Yesterday we started chapter 8, the hack driver, and today we will continue it. Students, before starting chapter, let's take a recapitulate of yesterday's work. In the starting of the story, we came to know about the lawyer who was a graduate with honors and doing a job of a clerk or assistant clerk in a magnificent law firm. He was fed up with his work, but one day when he was sent to a village called New Million, he felt very happy. He imagined the village, that the village will be a sweet village, but when he reached there, he found that the streets of the village were rivers of mud, and he fed up. There he went to Sir Summons a person named Oliver Lutkins. At the station, he found a friendly hack driver who promised him to help him to find Oliver Lutkins. Now, the narrator arranged $2 per horse for the fare of the hack, and they started searching Oliver Lutkins. Now, first they reached Fritz's shop, where they find that Oliver Lutkin came there but before an hour. And now they went to Gustav's shop, and then they reached Grace's shop. Let's start next page, page number 50. How about something to eat? It was afternoon time, and the narrator was feeling hungry. That's why he asked the hack driver, how about something to eat? I suggested, मैंने सुझाव दिया कि कुछ खाने के बारे में क्या इरादा है. Let's go to a restaurant and I will buy you lunch. आओ हम एक रेस्टोरेंट पर चलते हैं, एक रेस्तरां पर चलते हैं और मैं तुम्हें लंच करवाऊंगा. कौन किसको लंच करवा रहा है? नरेटर है, वो हैक ड्राइवर को कह रहा है. Well, I ought to go to home to the wife. अब जो हैक ड्राइवर है वो कहता है ठीक है, मैं तो घर पर अपनी वाइफ के पास जाना चाहूंगा. I don't care much for these restaurants, कि मैं इन रेस्टोरेंट्स की ज्यादा परवाह नहीं करता हूँ. Only 4 of them and they are all bad. यहाँ पर सिर्फ 4 रेस्टोरेंट है और चारों के चारे बुरे हैं. Tell you what we will do. मैं तुम्हें बताता हूँ कि हम क्या करेंगे. We will get the wife to pack up a lunch for us. हम मेरी पत्नी से हमारे लिए लंच पैक कराएंगे. She won't charge you more than $0.50. और वो तुमसे $0.50 से ज्यादा पैसे नहीं वसूलेगी. And it would cost you more for a greasy meal in a restaurant. Greasy means क्या? Oily. और यदि तुम किसी रेस्टोरेंट में जाते हो तो वहां पर तुम्हें लंच के लिए ज्यादा पैसे चुकाने पड़ेंगे, जो कि ऑयली लंच होगा, तेलीय होगा. And we will go up to Wades Hill. और फिर हम वेड्स हिल जाएंगे, एक पहाड़ी है जिसका नाम वेड्स है, वहां पर जाएंगे. एंड एंजॉय द व्यू व्हाइल वी ईट. और जो व्यू है, दृश्य है, सीन है, उसका आनंद उठाएंगे जब हम लंच करेंगे. What more does Bill say about Lutkins and his family? रीड एंड फाइंड का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो बिल है वो और अधिक क्या बताता है लटकिंस के बारे में, उसके परिवार के बारे में. हियर द हैक ड्राइवर told the narrator that Lutkins was a very clever man. He always takes money from others and never pay back, and he tells that his mother is a terror and she is 9 feet tall and 4 feet thick, and she is quick as a cat. Does the narrator serve the summons that day? क्या narrator उस दिन सम्मन दे पाता है? No, the narrator does not serve summons that day because he was made fool by the hack driver who was himself Lutkins. Who is Lutkins? Lutkins is the hack driver himself who made fool of the narrator and don't let him know that he was the person whom the narrator was searching. I know that Bill's helpfulness to the young fellow from the city was not entirely a matter of brotherly love. मैं जानता था कि जो बिल का हेल्पफुलनेस, जो मदद का नेचर है एक युवा व्यक्ति के लिए, यंग फेलो कौन है यहाँ पर? नरेटर खुद ही, जो कि शहर से आया है, वो पूरी तरह से एंटायरली मींस कंप्लीटली, पूरी तरह से कोई भाईचारे की भावना नहीं थी. I was paying him
फॉर दिस टाइम। मैं उसको उसके समय के लिए पैसे दे रहा था। इन द एंड आई पेड हिम फॉर 6 hours इंक्लूडिंग द लंच आवर। और आखिर में मैंने उसको 6 घंटे के पैसे दिए, जिसमें जो लंच आवर था वो भी शामिल था। एट व्हाट वाज देन ए वेरी हाई प्राइस, और उस समय जो कि बहुत बड़ी कीमत थी। बट ही वॉज नो मोर डिसऑनेस्ट देन आई, परंतु वह मेरे से ज्यादा बेईमान नहीं था। स्टूडेंट्स, देयर इज ए क्वेश्चन, व्हाई डज द नरेटर से he was no more dishonest than I? The narrator says this because he had to charge all the money from the farm. He was not paying from his own pocket. That's why he was not less dishonest than the hack driver. परंतु वह मेरे से ज्यादा बेईमान नहीं था। I charged the whole thing to the firm. मुझे तो सारे पैसे लेने थे, चार्ज करने थे फर्म से, कंपनी से। But it would have been worth paying him myself to have his presence. परंतु मेरे लिए तो जो उसकी प्रेजेंस थी उसके लिए पैसे देना जरूरी था। His cheerful country wisdom was very refreshing to a country boy like myself. और उसका जो चेयरफुल, जो हैप्पी, बहुत ही प्रसन्नता वाला, प्रेजेंट जो नेचर था, स्वभाव था, कंट्री विजडम, कंट्री मीन्स क्या है पर रूरल, जो देहाती बुद्धिमत्ता थी, वॉज वेरी रिफ्रेशिंग टू ए कंट्री बॉय, वो बहुत ही रिफ्रेश करने वाली थी, तरोताजा महसूस कराने वाली थी एक देहाती लड़के के लिए, लाइक माई सेल्फ, जो कि मेरी तरह का था, हु वाज सिक ऑफ द सिटी, जो कि शहर की लाइफ से परेशान था। एज वी सेट ऑन द हिल टॉप, और जब हम बैठे हुए थे हिल टॉप के ऊपर, वेट्स पहाड़ी के ऊपर, लुकिंग ओवर द पास्चर्स, पास्चर्स मींस क्या, मेडोज, चारागाहें, चारागाहों को देखते हुए, एंड क्रीक, क्रीक मींस क्या, शॉर्ट आर्म्स ऑफ रिवर, नदी की छोटी छोटी पार्ट्स, विच स्लिप्ड अमंग द ट्रीज, स्लिप्ड मींस क्या, स्लाइडेड, जो कि पेड़ों में से खिसक रही थी। They were on the Bates Hill and the narrator is describing the scene, but they were looking the beautiful meadows, the pastures, सुंदर सुंदर चारागाहें उन्हें नजर आ रही है। दूसरा, जो नदी की क्रीक्स हैं, शाखाएं हैं, ब्रांचेज हैं, जो पेड़ों के बीच में से जा रही है, वो भी। He talked the new million, उसने न्यू मिलियन के बारे में बातें की, and painted a picture in words of all people in it, और उसने जो भी लोग यहाँ पर रहते हैं उनकी एक पिक्चर मेरे सामने प्रस्तुत कर दी। ऐसे उसने कहानियां सुनाई, लोगों के बारे में ऐसे बातें बताई जैसे कि वो लोग मेरे सामने ही खड़े थे। He noticed everything, but no matter how much he might laugh at people, उसने प्रत्येक चीज की तरफ ध्यान दिया, परंतु ये बात कोई माने नहीं रखती थी। वह लोगों का कितना मजाक उड़ा रहा था, कितना उनके ऊपर हंस रहा था। He also understood and forgave their foolishness, वह भी समझ रहा था और माफ कर देता था उनकी मूर्खता को। He described the minister's wife who sang the loudest in church when she was most in debt. उसने वर्णन किया मिनिस्टर की वाइफ का, जो कि जब कर्ज में होती थी तो चर्च में जाकर के सबसे ऊंची आवाज में प्रेयर करती थी। He commented on the boys who came back from college in fancy clothes. उसने कमेंट किया, उसने अपने विचार प्रस्तुत किए। कमेंटेड मींस क्या, एक्सप्रेस्ड व्यूज, उसने अपने विचार किए उन लड़कों के बारे में जो कि कॉलेज से वापस आते हैं फैंसी क्लोथ्स में। He told about the lawyer whose wife could never succeed in getting him up to put on both a collar and a tie on the same day. उसने उस लॉयर के बारे में बताया जो कि जिसकी वाइफ है वो कभी भी सफल नहीं हो पाई उसको एक साथ कॉलर और टाई पहनाने में। मीन्स वो हमेशा जिद करती थी कॉलर टाई एक साथ पहनी जाए, जो कि कभी भी पहनी नहीं जा सकती है। He made them all live. उसने उन सभी को जीवंत चित्रित किया, मीन्स उनकी ऐसी पिक्चर क्रिएट की कि मुझे लग रहा था जैसे वो लोग मेरे सामने खड़े थे। On that day I came to know New Million better than I did the city. और उस दिन मुझे पता चला कि न्यू मिलियन जो है वो बेटर है, जिस शहर में मैं रहता हूँ वहां से काफी अच्छी जगह है। एंड टू लव इट बेटर, और मैं इसको अच्छे से पसंद कर सकता था। बिल डिड नॉट नो अबाउट कॉलेजेस एंड सिटीज। बिल कॉलेज के बारे में और शहर के बारे में नहीं जानता था, बट ही हैड ट्रेवल्ड अराउंड ए लॉट ऑफ द कंट्री। परंतु उसने बहुत अधिक देहात की यात्रा की थी।
द कंट्री मीन्स क्या, रूरल एरिया, देहात, एंड हैड ए लॉट ऑफ जॉब्स, और उसके पास अत्यधिक काम थे। फ्रॉम हिज एडवेंचर्स ही हैड ब्रॉट बैक ए फिलोसफी ऑफ सिंप्लिसिटी एंड लाफ्ट। अपने एडवेंचर से, साहसिक कार्यों से उसने एक फिलोसफी अपनाई थी, एक दर्शन शास्त्र की कला अपनाई थी, जो कि सिंप्लिसिटी है, साधारणता है, सिंपल रहना और हंसना। He strengthened me, strength means क्या है, gave strength, ताकत देना, उसने मुझे ताकत दी। We left that peaceful scene of meadows and woods। अब हमने वो जो पीसफुल, बहुत ही क्वाइट सीन था, दृश्य था, शांतिपूर्वक, मीडोज का, जंगल का, वुड मीन्स क्या होता है, लकड़ी, और वुड्स जब प्लूरल बन जाता है तो क्या हो जाता है, फॉरेस्ट, जंगल। हम वहां से चल पड़े। एंड रिज्यूम्ड आवर सर्च फॉर ऑफ ओलिवर लटकिंस। रिज्यूम्ड मीन्स क्या, स्टार्टेड अगेन, और हमने हमारी जो खोज थी ओलिवर लटकिन की दोबारा से शुरू कर दी। वी कुड नॉट फाइंड हिम, हमें वह नहीं मिला। एट लास्ट बिल कॉर्नर ए फ्रेंड ऑफ लटकिंस। आखिर में बिल लेकर के गया कोने में लटकिन के एक दोस्त को। कॉर्नर मीन्स क्या, टेक हिम इनटू ए कॉर्नर, एंड मेड हिम एडमिट व्हाट ही गेस्ड, और उससे स्वीकार करवाया, एक्सेप्ट करवाया, एग्री करवाया उसको इस बात पर जो कि वह कंक्लूड कर रहा था। गेस्ट मीन्स क्या, कंक्लूडेड। ओलिवर्स गॉन टू आउट टू हिज मदर्स फार्म। क्या कंक्लूड कर रहा था कि ओलिवर है वो अपनी माँ के फार्म पर गया है, 3 miles नॉर्थ, जो कि 3 मील नॉर्थ दिशा में था। वी ड्रॉ आउट देयर लेइंग प्लान्स। अब हम वहां पर चले गए योजनाएं बनाते हुए। आई नो ओलिवर्स मदर, शी इज ए टेरर, बिल साइड। बिल ने आ भरते हुए कहा कि मैं ओलिवर की माँ को जानता हूँ, तो एक आतंक है, टेरर है, डर है, भयानक है वो औरत। आई टुक ए ट्रंक आउट देयर फॉर हर वंस। मैं एक बार उसके लिए एक ट्रंक मीन्स क्या, बॉक्स, एक बॉक्स लेकर के गया था। एंड शी ऑलमोस्ट टुक माई स्किन ऑफ बिकॉज आई डिड नॉट ट्रीट इट लाइक ए बॉक्स ऑफ एग्स। और लगभग उसने मेरी स्किन खींच ली थी, चमड़ी खींच ली थी, क्योंकि मैंने इस बॉक्स के साथ व्यवहार नहीं किया था जैसे कि कोई एग्स का बॉक्स हो, अंडों का बॉक्स हो। शी इज अबाउट 9 feet टॉल एंड 4 feet थिक। वह लगभग 9 फीट लंबी और 4 फीट चौड़ी थी, मोटी थी। एंड क्विक एज ए कैट, और बिल्ली की तरह फुर्तीली थी। एंड शी श्योर कैन टॉक, और वह निश्चित तौर पर बात कर सकती थी। आई विल बेट ओलिवर हर्ड दैट समबडी इज चेजिंग हिम। मैं शर्त लगाता हूँ कि ओलिवर ने कहीं ना कहीं से सुन लिया था कि कोई उसका पीछा कर रहा था। चेजिंग मींस क्या, फॉलोइंग। एंड ही हैज गॉन ऑन देयर टू हाइड बिहाइंड हिज मदर्स स्कर्ट्स। और वह वहां पर चला गया है अपनी माँ की स्कर्ट के पीछे छिपने के लिए। वेल वी विल ट्राई हर। ठीक है, हम उससे पूछेंगे, उससे पूछताछ करेंगे, बट यू वुड बेटर लेट मी डू इट। वाई, परंतु लड़के अच्छा होगा तुम ये काम मेरे ऊपर छोड़ दो। यू मे बी ग्रेट एट लिटरेचर एंड लॉ। तुम साहित्य में, कानून में अच्छे हो सकते हो, तुम ज्यादा ज्ञानवान हो सकते हो इस कार्य में, बट यू हैव नॉट हैड रियल ट्रेनिंग इन स्वीयरिंग। स्वीयरिंग मीन्स क्या, टू से फॉर्मली। परंतु तुम्हारे अंदर अभी वो ताकत नहीं है कि तुम अपनी बात को मजबूती के साथ रख सको, टाइट कैस को। वी ड्रो इनटू ए पुअर फार्म यार्ड। हम एक फार्म यार्ड पर पहुंचे। We were faced by an enormous and cheerful old woman। हमारा सामना हुआ, enormous means क्या, very huge, big। हमारा सामना हुआ एक बहुत बड़ी औरत से, बूढ़ी औरत से, जो कि खुश थी, cheerful, happy। My guide bravely went up to her and said, my guide, who is guide? Here the head driver is guide for the narrator। narrator के लिए guide था, पथ प्रदर्शक था। वो बड़ी बहादुरी से गया उसके पास और कहा, remember me, मुझे याद करो। आई एम बिल मैग्नीशन, मैं बिल मैग्नीशन हूँ। द कार्टर एंड हैकमैन। कार्टर मीन्स क्या, कोचमैन, हैकमैन भी क्या, कोचमैन, घोड़ा गाड़ी वाला, घोड़ा गाड़ी चलाने वाला। आई वॉन्ट टू फाइंड योर सन ओलिवर। मैं तुम्हारे बेटे ओलिवर को ढूंढना चाहता हूँ। आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट ओलिवर। मैं ओलिवर के बारे में कुछ नहीं जानती हूँ। एंड डोंट वांट टू, और जानना भी नहीं चाहती हूँ। सी शाउटेड, वह चीख करके बोली। Now look here, we have just about enough nonsense। अब बात सुनो इधर, हम पहले ही बहुत मूर्खता कर चुके हैं। This young man represents the court in the city। Represent means क्या, a member। यह जो युवा व्यक्ति है वो एक सदस्य है
कोर्ट की तरफ से आया शहर में से। एंड वी हैव ए लीगल राइट टू सर्च ऑल प्रॉपर्टीज फॉर दिस ओलिवर लटकिंस, और हमारे पास लीगल राइट है, हमारे पास कानूनी अधिकार है कि हम ओलिवर लटकिन की पूरी प्रॉपर्टी को सर्च कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। बिल मेड मी साउंड वेरी इंपॉर्टेंट, और बिल ने मुझे ऐसा फील कराया जैसे मैं बहुत ही महत्वपूर्ण था। एंड द वुमेन वाज इम्प्रेस्ड, इम्प्रेस मीन्स क्या, कन्विंस्ड, और ऐसे लगा जैसे औरत को भी हमारी बातों पर विश्वास हो गया। हु इज द वुमेन हियर? वुमेन हियर लटकिंस मदर। शी रिटायर्ड इनटू द किचन, रिटायर्ड मीन्स क्या, वेंट अवे, वह रसोई घर में चली गई। एंड वी फॉलोड, और हम भी उसके पीछे पीछे गए। शी सीज्ड एन आयरन फ्रॉम द ओल्ड फैशन स्टोव, अब उसने सीज्ड मीन्स क्या, होल्ड, उसने पकड़ा एक लोहा जो कि पुराने टाइम के स्टोव में से लिया था उसने। एंड मार्च्ड ऑन अस शाउटिंग, मार्च मीन्स क्या, रन टुवर्ड्स, हमारी तरफ दौड़ी चीखते हुए। यू सर्च और यू वांट टू, तुम ढूंढ लेना जो कि तुम सब चाहते हो। इफ यू डोंट माइंड गेटिंग बर्न फर्स्ट, यदि तुम पहले अपने आप को जलने से बचा लो। शी शाउटेड एंड लाफ्ड एट आवर फ्राइटेंड रिट्रीट, वह चीखी और हंसी, हमारा जो डरा हुआ पीछे हटना था, रिट्रीट मीन्स क्या, रिसीडिंग, हम डर करके जैसे पीछे हटे तो वो चीखते हुए हंसी। लेट्स गेट आउट ऑफ हियर, शी विल मर्डर अस, आओ हम यहाँ से बाहर चलते हैं, वह हमें मार देगी, वह हमारी हत्या कर देगी। बिल विस्पर्ड, बिल बुड़बुड़ाया, विस्पर्ड मीन्स क्या, स्पीक इन ए लो टोन। आउटसाइड ही सेड, बाहर आकर उसने कहा। डिड यू सी हर स्माइल, क्या तुमने उसकी मुस्कुराहट देखी? शी वॉज लाफिंग एट अस, वह हमारे ऊपर हंस रही थी। आई एग्रीड दैट इट वॉज प्रेटी डिसरेस्पेक्टफुल ट्रीटमेंट, मैं इस बात से पूरी तरह सहमत था कि ये तो बहुत ही अच्छा बेइज्जती का व्यवहार उसने किया था। वी डिड हाउएवर सर्च द हाउस, फिर भी हमने यद्यपि घर को खोजा। सिंस इट वॉज ओनली वन स्टोरी हाई, क्योंकि ये जो घर था ये केवल एक मंजिला था, स्टोरी मीन्स क्या है, मंजिल, फ्लोर। बिल वेंट राउंड इट peering in at all the windows, बिल इसके चारों तरफ गया, peering means क्या, लुकिंग, झांकते हुए इसके खिड़कियों में से। We examined the barn, examine means क्या, inquire, हमने परीक्षण किया बार्न का, बार्न मीन्स क्या आता है, स्टोरेज फॉर ग्रेन्स, अनाज भंडार घर, ग्रैंडरी कह सकते हैं। एंड स्टेबल, और जो अस्पताल था, घोड़ों की जगह थी, उसकी भी जांच परख की। We were reasonably certain that Lutkins was not there, हम पूरी तरह इस बात से निश्चित हो गए थे लटकिन वहां पर नहीं था। It was nearly time for me to catch the afternoon train, और लगभग अब समय हो गया था मेरे लिए दोपहर की ट्रेन पकड़ने का। And Bill drove me to the station, और बिल अब मुझे ले आया था स्टेशन पर। On the way to the city, I worried very little over my failure to find Lutkins, अब जब मैं वापस जा रहा था शहर में तो मैं बहुत ही कम चिंतित था, वरीड था, परेशानी महसूस कर रहा था कि लटकिन मुझे नहीं मिला इस बात के ऊपर। आई वॉज टू बिजी थिंकिंग अबाउट बिल मैग्यूशन, मैं बहुत ही व्यस्त रहा रास्ते में बिल मैग्यूशन के बारे में सोचते हुए। रियली आई कंसिडर रिटर्निंग टू न्यू मिलियन टू प्रैक्टिस लॉ, और वास्तव में मैं सोच रहा था कि मैं वापस न्यू मिलियन आऊंगा, प्रैक्टिस यहाँ पर करूंगा अपनी ट्रेनिंग लॉ की। If I had found Bill so deep and richly human, यदि मैं बिल को इतना अच्छे दिल वाला, डीप एंड रिचली ह्यूमन मीन्स क्या, बहुत ही अच्छे दिल वाला इंसान पा सकता हूँ। Might I not grow to love Fritz and Gustav, तो क्या मैं प्रेम पैदा नहीं कर सकता हूँ फ्रिज और गस्टाव के दिल में। And 100 other slow spoken, simple wise neighbors, और दूसरे सैकड़ों बहुत ही प्यार से बोलने वाले बुद्धिमान पड़ोसियों से। I pictured an honest and happy life beyond the strict limits of universities, मैंने इमेजिन किया, पिक्चर मीन्स क्या, इमेजिन, कल्पना की, एक बहुत ही ईमानदारी की, खुश जीवन की, जो कि दूर था, जो कि स्ट्रिक्ट मीन्स क्या, हार्ड, जो लिमिट्स थी, बाधाएं थी यूनिवर्सिटीज की, विश्वविद्यालयों की, उनसे। एंड लॉ फर्म्स, और कानून की फर्म से, कि जो कठिनाई भरा जीवन था उससे कहीं दूर कल्पना में कर रहा था। आई वॉज एक्साइटेड मीन्स क्या, स्टिमुलेटेड, बहुत उत्तेजित हो रहा था। आई हैड फाउंड ए ट्रेजर, जैसे कि मुझे कोई खजाना मिल गया था।
I had discovered a new way of life. मुझे जीवन का एक नया तरीका मिल गया था. But if I did not think much about Lutkins, the office did. परंतु यदि मैं ज्यादा नहीं सोचता हूँ लटकिन के बारे में तो ऑफिस इसके बारे में सोचेगा. I found them all upset. मैंने उन सभी को बड़ा उदास पाया. Next morning, the case was coming up in the court. अगली सुबह केस अदालत में आने वाला था. And they had to have Lutkins. और उन्हें लटकिन की जरूरत थी. I was a shameful, useless fool. मैं एक बहुत ही शर्मिंदा और बेकार का मूर्ख था. That morning, my promising legal career almost came to an end before it had begun. उस सुबह मेरा जो promising means क्या? Giving assurance. अभी मेरे को विश्वास दिला रहा था कि मेरा करियर अच्छा बनेगा, वो लगभग अंत होने के कगार पर आ गया था, शुरू होने से पहले ही. The chief almost murdered me. लगभग जो चीफ था, मेरा जो बॉस था, उसने मेरी हत्या ही कर दी थी. He hinted that I might do well at digging ditches. Hinted means क्या? Pointed. उसने इशारा किया कि मैं अच्छा कर सकता हूँ खैया खोदने में. Ditches means क्या? मोट्स, खैया खोदने में, गड्ढे खोदने में. I was ordered back to New Milan. मुझे आदेश दिया गया वापस न्यू मिलियन जाने का. And with me went a man who had worked with Lutkins. और मेरे साथ एक व्यक्ति गया जो कि लटकिन के साथ काम कर चुका था. I was rather sorry. मैं बहुत दुखी था because it would prevent my laughing all over again with Bill. क्योंकि यह जो साथ था वो रोकेगा. prevent means क्या? stop. laughing means क्या? to spend time idly. बेकार समय बिताना, आवारागर्दी करने का जो टाइम था बिल के साथ वो दोबारा से मैं नहीं कर पाऊंगा इस व्यक्ति के साथ जाने की वजह से. When the train arrived at New Milan, जब ट्रेन पहुंची न्यू मिलियन, Bill was on the station platform. बिल प्लेटफॉर्म पर ही था. Near his cart, अपनी गाड़ी के पास में. Strangely enough, that old tigress, Lutkin's mother, was there, talking and laughing with Bill. बड़ी विचित्र बात थी कि वह बूढ़ी शेरनी लटकिन की माँ वो भी बातें कर रही थी, हंस रही थी बिल के साथ में. Not quarreling at all, बिल्कुल भी झगड़ नहीं रही थी. From the train steps, I pointed Bill out to my companion and said, और ट्रेन की सीढ़ियों से ही मैंने अपने दोस्त को इशारा किया बिल की तरफ और कहा, There is a fine fellow, a real man. कि एक बहुत अच्छा इंसान है, एक वास्तविक इंसान है. I spent the day with him. मैंने उसके साथ पूरा दिन बिताया. He helped you hunt for Oliver Lutkins. उसने तुम्हारी मदद की ओलिवर लटकिन को ढूंढने की. Yes, he helped me a lot. हाँ, उसने मेरी बहुत अधिक मदद की. He must have. उसने जरूर की होगी. He is Lutkins himself. वह खुद ही लटकिंस है. What really hurt me was that when I served the summons. जिस बात ने मुझे ज्यादा तकलीफ पहुंचाई, hurt means क्या? prick, कचोटा. वो जिस समय मैंने सम्मन दिए, इशू किए लटकिन को. Lutkins and his mother laughed at me as though I were a bright boy of 7. उस टाइम लटकिंस और उसकी माँ मेरे ऊपर ऐसे हंस रहे थे जैसे मैं कोई 7 साल का बच्चा हूँ. With loving kindness, they begged me to go with them to a neighbor's house for a cup of coffee. और बड़े प्यार भरी दयालुता से उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की. बेग में क्या? रिक्वेस्टेड, प्रार्थना की कि मैं उनके साथ जाऊं उनके पड़ोसियों के घर पर एक कप कॉफी पीने के लिए. I told them about you. They are anxious to look at you. Anxious means क्या? trouble. मैंने तुम्हारे बारे में उनको बताया था, वो बहुत ही चिंतित हैं तुम्हें देखने के लिए. Said Lutkins joyfully. Lutkins ने बड़ी खुशी पूर्वक कहा. They are about the only folks in the town that missed seeing you yesterday. वे ही शहर में, folks means क्या? people. वही अकेले लोग रह गए थे कस्बे में जिन्होंने कल तुम्हें मिस कर दिया था, तुम्हें देख नहीं पाए थे. Students, we have discussed this chapter completely, line by line. I hope it is clear to you. Thank you.